تو آج کا موضوع ہے رسپونڈ ورسز ریئیکٹ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ایکشنز ہیں، جب ہم کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم کچھ رد عمل کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس بات کا شعور نہیں، جنہیں اس بات کا علم نہیں رہتا کہ وہ جو کر رہے ہیں ان کے اس فعل سے، اس عمل سے، اس ریئیکٹ سے سامنے والے انسان کی جو فیلنگز ہیں، جو جذبات ہیں، جو ایموشنز ہیں، ان پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو اسی بات کو آج میں ایکسپلین کروں گا۔ میں آپ کے پاس دو ایگزامپل رکھوں گا۔ ایک میں رکھوں گا کہ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، آپ نے اپنا انالیسس کرنا ہے، اپنے آپ کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو زوم کر کے دیکھنا ہے کہ جو آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ریئیکٹ کرنے والی ہے یا رسپانس کرنے والی ہے۔ اب یہاں پہ ریئیکٹ اور رسپونڈ، آپ اس کو رسپانس بھی کہہ سکتے ہیں، رسپونڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے، ایک ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس ایگزامپل کو بڑے غور سے، سارے کام چھوڑ کے، اگر آپ ایزی ہیں بات سن سکتے ہیں، ادھر ادھر اٹینشن کیے بغیر آپ نے میری آج کی اس ایگزامپل کو سننا ہے۔ یقین جانیے یہ ایگزامپل آپ کی زندگی کو، آپ کی زندگی کا تھیم آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گی اور آپ کو آپ کے بارے میں بتا دے گی کہ آپ ریئیکٹ کرنے والے ہیں یا رسپانس کرنے والے ہیں۔ اور اب یہ بھی میں بتا دوں گا کہ وہ لوگ جو ریئیکٹ کرتے ہیں ان کی زندگی کے ساتھ کیا چیز جڑی ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو رسپونڈ کرتے ہیں ان کی زندگی کے ساتھ کیا چیز جڑی ہوتی ہے۔ تو ایک ایگزامپل ریئیکٹ کی، ہوتا کیا ہے کہ ایک بچہ جو اپنے باپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ابا حضور میں ماسٹر کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو چکا ہوں، یونی کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ میرے باقی دوست احباب بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں پہ آتے ہیں اور میرے پاس یہ ایک تھکی سی ایک 18 سی گاڑی ہے۔ اب بچے نے یہ ڈیمانڈ رکھی، وہ لڑکا اپنے باپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھ کو ایک اچھی سی گاڑی چاہیے۔ اس کے باپ نے کہا میرا بیٹا میں اس کا بھی انتظام کر دوں گا، لیکن آپ ابھی اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں، آپ ابھی پڑھتے رہیں، اور یہ جو گاڑی آپ کے پاس ہے نا آپ اسی کو مینج کریں۔ بچے نے ایک بار یہ بات کی، اس لڑکے نے 2 بار کی، 3 بار کی۔ اب اپنے باپ کو وہ مسلسل یہی بات کرتا کہ مجھے ایک گاڑی چاہیے۔ اس کے باپ نے بھی آگے سے سیم یوزول ریئیکٹ کر دینا، رسپانس کر دینا کہ اچھا یار کر لیں گے۔ ایک دن بچہ وہ ایک شو روم کے اندر جاتا ہے اور اپنی وہی من پسند گاڑی جس کو اس نے دیکھا تھا اور دوبارہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ میں تجھ کو پرچیز کروں گا، تو میرے پاس ہوگی۔ اب جب وہ یہ بات اپنے آپ سے کرتا ہے نا، جب یہ سینٹینس بولتا ہے کہ میں تجھے خریدوں گا، تو اس کے دل میں نا ایک مزید وہ ہوپ پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ گاڑی اب تو میرے پاس ہونی چاہیے۔ انہی فیلنگز کے ساتھ، انہی ایموشنز کے ساتھ وہ اپنے گھر گیا، اپنے باپ سے وہی بات ریپیٹ کی کہ ابا حضور مجھے گاڑی چاہیے۔ تو اس کے باپ نے کہا اچھا میرا بیٹا کر دیں گے۔ دوسرے دن ویری نیکسٹ ڈے وہ لڑکا اپنے باپ سے، اس کے باپ نے وہ گھر آیا، بیٹھا، کھانا پینا جو کچھ بھی ہوا، اس کا باپ ایک ڈبہ لے کے آتا ہے۔ اب اس نے وہ ڈبہ، چھوٹا سا ڈبہ تھا، اور وہ ڈبہ اس نے اپنے بیٹے کو کال کی، اپنے بیٹے کو بلوایا اپنے نوکر کے تھرو، اور کہا جب وہ بیٹا آیا تو وہ ڈبہ اس کے ہاتھ میں دے دیا، نہیں میرا بیٹا۔ اب جب اس نے وہ ڈبہ پکڑا، اس نے جو سوچا تھا، جو اس نے سوچا تھا کہ اس ڈبے کے اندر ہو سکتا ہے کوئی میرے لیے ابا جی نے کوئی ایسا گفٹ رکھا ہو جس کی میں ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ تو اب اس لڑکے نے جب وہ ڈبہ پکڑا، اپنے باپ کی موجودگی میں وہ ڈبے کو کھولتا ہے، اس ڈبے کے اندر ایک بک پڑی ہے، ایک کتاب پڑی ہے۔ اب کیونکہ لڑکے کو اس کی جو ایکسپیکٹیشن کا لیول تھا، اس کی جو امیدیں تھیں اپنے باپ سے، وہ کچھ یہ تھی کہ میرے ابا حضور آج مجھے وہی گفٹ دینے جا رہے ہیں جو میں چاہتا تھا، جو میرا مطالبہ تھا۔ اب لڑکے نے کیا کیا، جب وہ ڈبہ دیکھا اور اس کے اندر وہ بک دیکھی، غصے سے وہ لڑکا لال پیلا ہو جاتا ہے اور وہ صندوق ڈبے کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، ایک سائڈ پہ رکھ کے اور بڑے غصے کے ساتھ گھر سے نکل جاتا ہے۔ اس کا باپ اس کو بلا رہا ہے، بیٹا پلیز بات تو سنیں، اور وہ اسی اپنے غصے کے ساتھ، انہی فیلنگز کے ساتھ، انہی ایموشنز کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، وہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب گھر چھوڑ گیا،
1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 महीने, साल, 2 साल, यहाँ तक कि लड़के ने घर बिल्कुल छोड़ दिया, अपने बाप से राब्ता उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और क्या होता है कि उस लड़के ने बाहर ही शादी कर ली, शादी की, आगे मतलब कि अब उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोई काम काज किया, इत्तेफाक से उसको एक अच्छी जॉब मिली और उसको जो है ना वो उसका जो फाइनेंस था वो काफ़ी स्टेबल हो गया। अब उसे वो जो है ना वो कमी जो थी ना कि बाप के पैसों की, वो उसे फील ना हुई, काम चल गया, लड़का खुद बहुत बड़ा मालिक बन गया, एक बहुत शानदार उसने घर बनाया, एक बड़ी शानदार उसने गाड़ी खरीदी। और अब आगे वक्त गुजरता है, बच्चे होते हैं, अब उस लड़के के पास वो जो जिसने घर छोड़ा था, अल्लाह ने उसको औलाद की नेमत से नवाजा, 2 बच्चे हुए उसके। और अब उन बच्चों ने कहा कि अब्बा हजूर हमारे दादा अबू नहीं हैं, आपके पापा नहीं हैं। तो लड़के ने ना एक आह भरी और कहा नहीं है, मतलब कि उसको उस बात का इतना गुस्सा था कि वो कहते नहीं है। इतना अरसा गुजरने के बावजूद उसकी वो जो उसके जो इमोशंस थे, जो फीलिंग्स थी, वो लाइट नहीं हो पा रही थी। अब एक दिन क्या होता है, कॉल आती है कि आपके वालिद मोहतरम, किसी तरह राब्ता होता है और बताया जाता है कि आपके वालिद मोहतरम बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो आप आके पता कर दें। उस लड़के ने सुनी अनसुनी की और कहा कि मैं बिज़ी हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, मेरी आज फ़लाँ जगह पे मैंने जाना है, लिहाजा मैं नहीं आ सकता, और इस बुढ़े को आप घर भेज दें अगर ये बचता है तो। खैर, क्योंकि गुस्सा था एक साइड पे। अब क्या होता है कि जब ये सारा कुछ हुआ तो लड़के के दिल में ख्याल आया कि यार चलो अब एक अरसा गुजर गया, तो क्यों ना आज अपने बाप के घर चलते हैं, अब आज अपने बाप को मिल के आते हैं। माँ पहले ही नहीं थी, वो मर चुकी थी बचपन में बच्चे के। अब क्या होता है कि अब जब ये वहाँ पे अपने घर गया, इसने अपने बच्चे लिए, अपनी वाइफ को लिया, अपनी गाड़ी जो बेहतरीन इसके पास थी वो ली, दरवाजे पे आया, नॉक हुआ, आगे से गनमैन, नौकर चाकर जो भी दरवाज़ा खोला। तो अब जब वो अंदर गया ना घर के, तो वही शानदार महल जो वो छोड़ के गया था, उसको देख के ना उसकी आंखों में पानी आ गया। तो कहता है कि यार मैं छोड़ के चला गया था। खैर, उसकी मिसिस कहती है कि ये आपके अब्बा जी का घर है? तो उसने कहा जी ये मेरे अब्बा हजूर का घर है, मतलब ये हमारा ही घर है। तो उसने कहा क्या बात है। तो दरवाज़ा खोलने वाले आदमी से वो पूछता है कि अबू जी किधर हैं? तो उसने कहा आपके अबू जी नहीं रहे, दुनिया से जा चुके हैं। तो लड़के को बड़ा इस चीज़ का बड़ा धचका लगा कि यार अगर मैं आ ही गया हूँ लेकिन आगे से वेलकम करने वाला कोई नहीं। लड़के को एक रुका दिया जाता है, एक पैगाम दिया जाता है, ख़त दिया जाता है उसी डिब्बे के अंदर। अब जब वो उस डिब्बे को, उसके अंदर से वो ख़त निकालता है, पढ़ता है, सारा रीड करता है और बड़ा दुख होता है। और उसके नीचे, उस ख़त के नीचे ये लिखा होता है कि मेरा बेटा आपने मेरी बात नहीं सुनी, इस डिब्बे के अंदर एक डिब्बा है और उस डिब्बे के अंदर उसी गाड़ी की चाबी है जिसकी आपने मुझसे डिमांड की थी, और वो गाड़ी मेरा बेटा गराज में खड़ी हुई है। ओहो, अब जब लड़के ने वो ख़त पढ़ा, उसके नीचे वाली इबारत पढ़ी और उस डिब्बे के नीचे जो डिब्बा था उस डिब्बे को खोला तो उसमें चाबी पड़ी हुई थी, उसी गाड़ी की जो वो डिमांड कर रहा था। अब लड़के पे जो बीती आप समझ सकते हैं कि उसने रिएक्ट किया था, रिस्पॉन्ड करता। बाप ने रिकॉल किया, जाते हुए उसके बाप ने उसको आवाज़ दी, मेरा बेटा मेरी बात सुनो, लेकिन उसने बात नहीं सुनी। और उसका क्या था, उसकी सारी ज़िंदगी अब उसको एक पछतावा है, एक रिग्रेट है। अगर आप रिएक्ट करते हैं रिस्पॉन्ड की जगह, तो जनाब मोहतरम आपकी ज़िंदगी के साथ पछतावा जुड़ जाएगा। हर वो इंसान जो रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो फिर उस बंदे को एंड पे पछतावा मिलता है। अब वो लड़का वहाँ पे गिर जाता है और उसको उठाते हैं, लेकिन उस बेचारे के पास इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतनी जुर्रत ही नहीं है। और वो कहता है कि मेरी कितनी बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने अपने बाप को खो दिया, दूसरा अब सारी ज़िंदगी मैं इस पछतावे के साथ जीऊँगा। तो जनाब मोहतरम एक एग्जाम्पल थी रिएक्ट की जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब रिस्पॉन्ड की मैं एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूँ कि सुबह का वक्त हो, आपने कहीं पे निकलना हो, आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी बहुत अहम काम के लिए जा रहे हैं और आप बिल्कुल फुल आप रेडी हैं, आपका गेटअप बड़ा कमाल का है। और होता क्या है कि आप अपने नौकर को, अपनी आया को, अपनी फैमिली में से, अपने बच्चों में से किसी को आवाज़ देते हैं कि पानी लेके आएं। अब वो पानी लेके आता है या आती है, और जिस
ट्रे में उसने पानी रखा, उस ट्रे के साथ चाय के 1-2 कप भी पड़े हैं। अब वो आपके पास आकर उसका पाँव फिसलता है और वो चाय का 1 कप आपके कपड़ों पे, मतलब आपकी शलवार को या आपकी पैंट को गंदा कर देता है। अब यहाँ पे होता क्या है, एक तो आपको जल्दी बहुत थी, बिल्कुल आप निकलने ही लगे थे तो आपको पानी की तलब हुई, आपने कहा पानी पी लेते हैं। अब आप एक तो जल्दी में थे, ऊपर से हुआ क्या कि आपके कपड़े गंदे कर दिए गए। अब यहाँ पे होता क्या है कि अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती थी। रिएक्ट ये था कि आप चीखते चिल्लाते, पूरे घर का माहौल, पूरे घर का जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब करते। एक तो रिएक्ट ये था। अब रिस्पॉन्स आपने जो रिस्पॉन्ड आपने किया, उस बंदे ने रिस्पॉन्ड क्या किया है कि वो कहता है अच्छा कोई बात नहीं, मैं देख रहा था आपका पाँव फिसला और मैं देख रहा था कि बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक आपको ठेड़ा लगता है, आप गिरने से बच गए हैं, लेकिन ट्रे गिरा, ग्लास गिरे, उसमें से कप गिरे और ये सारा कुछ हो गया। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, आप बच गए हैं ना, आप ठीक है ना, अच्छा कोई बात नहीं, कप भी आ जाएंगे, पानी भी आ जाएगा, ग्लास भी आ जाएंगे, ये ट्राउज़र पैंट शर्ट जो कुछ भी है ये भी दोबारा वॉश हो जाएगा। तो हमने किसी किस्म की मेंटल डिस्टर्बेंस किसी के लिए भी पैदा नहीं करनी, तो आप उठिए, अच्छा कोई बात नहीं। अब जिसने रिएक्ट करना था रिस्पॉन्ड करना, जिसने रिएक्ट करना था वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब आपने ये देखना है कि लाइफ के अंदर जब आपको अग्रेसिव किया जाता है, जब आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, जब आप रिएक्ट करते हैं रिस्पॉन्ड की जगह, तो फिर आप जहन में रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में सेम उस लड़के की एग्जाम्पल की तरह पछतावा होगा। और जिनके पास पछतावा होता है ना, उनके पास ये बहुत बड़ी उन्हें ये सज़ा मिलती है, उनको अपने ही कामों की तरफ से। तो जनाब मोहतरम, मेरी ये 2 एग्जाम्पल आपने इनको एक अपना लेबॉर्ट्री के तौर पे आपने अपने आप को समझना है कि मैं इन एग्जाम्पल के थ्रू अपनी ज़िंदगी को मैं चेक करूँगा कि क्या मैं रिस्पॉन्स करता हूँ या मैं रिएक्ट करता हूँ। 1 से लेके 10 तक गिनती लिखिए, उसके साथ फीसद की लामत लगाइए और वहाँ पे अपने आप को नंबर दीजिए कि आप रिस्पॉन्ड कितना करते हैं और आप रिएक्ट कितना करते हैं। अगर रिस्पॉन्ड का जो लेवल है, ग्राफ है, वो 1-2 पे ख़त्म हो जाता है तो प्लीज़ इस ग्राफ को बढ़ाइए और 10 तक लेके जाइए। और जो रिएक्ट है, रिएक्ट भी करना चाहिए, लेकिन रिएक्ट करने से पहले थोड़ी सी सोच विचार, सूझबूझ, शेयरिंग करें, मशवरा करें, किसी से कैथारसिस करवाएं, किसी से हल पूछें कि यार ये प्रॉब्लम आ गई है, इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों के बाज़ लोग बड़े महान होते हैं, बड़े सियाने होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, लेकिन जब उनकी अपनी ज़िंदगी की बारी आती है तो वो वहाँ पे, वो मैं कहा करता हूँ कि बाज़ लोगों के मसाइल के हवाले से हम MBBS डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन जब अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बारी आती है तो हम कंपाउंडर भी साबित नहीं होते। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि घर की मुर्गी दाल बराबर, आप किसी और से भी मशवरा कर सकते हैं। अब जब 1 से मशवरा किया, 2 से किया और सबकी तरफ से जो रिस्पॉन्ड आ रहा है वो कहा जा रहा है कि आप रिएक्ट करें, तो फिर आप रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो भी होगा वो बेहतरीन होगा और वही होना चाहिए जो आपको करना चाहिए था। तो दुआ में याद रखिएगा, उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर रिएक्ट नहीं करेंगे बल्कि रिस्पॉन्ड करेंगे। और फिर जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे, आपका मेंटल पीस, आपके साथ जुड़े लोगों का मेंटल पीस और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बड़ी स्ट्रांग रहेगी। और अगर आप रिएक्ट करेंगे तो फिर रिग्रेट मिलेगा। रिएक्ट के बेटे का नाम, जो रिएक्ट है उसके बेटे का नाम क्या है? रेग्रेट, पछतावा, अफसोस। और आप ऐसे बेटे की मलकियत से हाथ उठा के रखें, नहीं तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। और अगर आज का ये क्लिप आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जोन चैनल जो आप देखते हैं, सुनते हैं, वॉच करते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए, ताकि वो जो मेरा जो मकसद था, पॉजिटिव पाकिस्तान, पॉजिटिव वर्ल्ड, जो मैं एक मिशन को लेके चला हूँ, आप उसमें मेरे मुआवन बने और मेरे साथ चलें। इंशाल्लाह जितना रिवार्ड मुझको मिलेगा उस रिवार्ड में आपकी भी शेयरिंग होगी। रिवार्ड यही होता है कि कोई आपके लिए दुआ करते, ना कि बद दुआ करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।